सभी को राम राम, जय श्री महाकाल. This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Shelly Arora ma'am on the platform for her podcast interview that we are conducting for both of our books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. So, hello Shelly ji, how are you doing today? Hello, Madhu ma'am. How are you? Mahadev. I'm fine, thank you, ma'am. Yes, I am good too. So before Okay. proceeding in, we'll take the blessings from the God So, and we'll start. Karpura Garam Karunavataram Sansarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि. yes, ma'am. तो एक बार वो वाला भी एक बोल के ट्राई करते हैं जो बोलते हैं ना, जैसे और आपका जैसे कि यूर सिंस यूर को फाउंडर टू. Sorry. नमः पार्वती पते Om हर हर Mahadev. महादेव. तो इसको बोलने के बाद ना एकदम से और जस्ट चेंज हो जाता है, तो सोचा जैसे So आप true, भी ma'am. शिव भक्त So हैं true. तो क्यों ना ये हो जाए आपके साथ. So true. सो स्टार्ट करने के पहले शरी जी के बारे में थोड़ा जानते हैं. एंड मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि आर यू एबल टू सी So, द स्क्रीन. yes, ma'am, I'm able to see. Yes. So talking about ma'am, she's a numerologist, spiritual healer, tarot card reader, rune reader, akashic reader. एंड ये एक छोटा सा कोट हमने माय मैरिज आर्टिकल से निकाला है मैम के, विच इज मैरिज इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, इट रिक्वायर्स एफर्ट, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन. एंड ये ब्यूटीफुल बुक कवर है सेवन ली ऑफ लाइफ, लर्निंग अर्निंग एंड एक्सपेक्टेशन, एंथोलॉजी ऑफ विजडम बाय 108 विजनरीज. ये मैम है विद बोथ दी बुक्स, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. एंड Thank you so much. just 1 minute. And this is the book cover, My Marriage Bliss versus Curse. And this is the book cover of Mobile Addiction, 21 Simple Techniques to Remove or Reduce Mobile Addiction in Children or Students and Adults. This is authored by me and my husband Abhishek Chitransh, who is an expert master numerologist, also founder and CEO of Ankakshar Miracles. And also I'll share with something about our ongoing anthology. Just 1 minute. Which is the title of the book is A Family Puzzle, United or Divided, Roots to Wings for Passing Bonds Across Generations. So इस एंथोलॉजी में भी हम लोग के 108 को ऑथर्स हैं and near about 30 registrations are done. So what all you'll get in this anthology is you'll get the hard copy of the book, hard copy of publishing certificate, your elite portfolio, also a lifetime membership with Ankakshar Miracles. Also जैसे शैली जी के साथ अभी इंटरव्यू हो रहा है, वन ऑन वन इंटरव्यू. Also we have a magazine on Maxter with the name Ankakshar Miracles. You will get a chance to get featured in it, surprise goodies and much more, media coverage, trophy, medal of co-authorship. So you will get much more things. And ये जो आप ब्यूटीफुल सी पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे हैप्पी को ऑथर्स हैं. हमारी बहुत जैसे कि किताबें आ चुकी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट्स एन एंथोलॉजी ऑफ 51 को ऑथर्स. एंड अभी हाल ही में आई थी माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स एंड सेवनली ऑफ लाइफ, दैट इज विद 108 को ऑथर्स. एंड टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, जैसे कि मैम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो उससे याद आया मुझे, हमारी बुक आई है डीप सीक्रेट्स ऑफ नेम, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी, जिसे कि हमने 2024 में दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च किया था. So these are our books which are available on Amazon, Flipkart. So you all can purchase it and read it and also share your beautiful reviews on the Amazon. So Shaili ji का ज़्यादा time नहीं लेंगे and we'll move on. And talking about her, she's a co-founder of Ananta Drishti.
इन्फिनिटी आई ऑफ शिव, जैसे मैंने कहा शिव जी की भक्त हैं. What a blissful name, Shelly ji. So we'd love to hear about the hidden story besides this grateful name, and also since you are into the world of occult practices since 5 years. So what piece of advice you would like to share with our generations out here to live a healthy and happy life without complaining in life, and above all to be grateful for all what all you are blessed with the grace of universe. Over to you, Shaliji. Sure. Thank you so very much, ma'am. Thank you, first of all, to Abhishek sir and to you for giving us the beautiful platform. And I would love to add Ekta ma'am, especially because उन्होंने हम लोगों को introduce किया था. I would love to add that thanks to her as well. First of all, I would like to thanks my mentor, my guru. Without them, I was not what I am today. They give me courage, they give me power, they give me the confidence what I have today. So gratitude, my gratitude starts from my guru as well as from my mentor, plus my parents and my whole family with their unconditional support to me whenever I need. They are there with me without questioning me why you are doing this or that. So it's a thing that family should be there. वो थोड़ी जर्नी और अच्छी हो जाती है. बिल्कुल. And Ananta Drishti Infinity Eye of Shiv, as you mentioned, yes, I am Shivji's big bhagat, you can say that. और ये उनका जो थर्ड आई का मैम, इट्स अ डिवाइन पावर. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम इज वेरी मच डिवाइन पावर इन इटसेल्फ. एंड सेकेंडली ये नेम मेरी जो डीप प्रैक्टिस की वजह से ही मुझे उन्होंने ब्लेस करके दिया है. और ये शिव शक्ति का नेम है, वन ऑफ द. और ये अनंता दृष्टि कम्स फ्रॉम देयर एंड इट्स अ थर्ड आई ऑफ शिवा, जिससे वो काफी, मतलब हम तो कुछ भी नहीं सोच सकते जो वो हमारे लिए कर जाते हैं. सो या. एंड you were asking about the today's generation. Well, today's generation is too smart that उनको हमारी एडवाइस नहीं चाहिए होती है. बट यस, हमारे भी अपने ओपिनियन है, हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है जो हमें उनके साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है. आई वुड लाइक टू एडवाइस कि स्टॉप बीइंग इन फ्यूचर. वो इतने ज्यादा फ्यूचर में है, वो इतने ज्यादा परफेक्ट होने के चक्कर में वो अपना प्रेजेंट नहीं देख रहे, वो प्रेजेंट में नहीं है, वो जस्ट फ्यूचर पे है. और मतलब कंपटीशन इज सो हाई. कंपटीशन होना बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है. बट आज के टाइम में आप आज का दिन तो प्रेजेंटली रहिए, तो वो ज्यादा मैटर करता है. इसलिए what I like to advise all the generation that please be in present, love yourself, be in a gratitude loop. क्योंकि आजकल ग्रेटिट्यूड नहीं है, सब में मैं है पर ग्रेटिट्यूड किसी में नहीं है. तो अगर वो ग्रेटिट्यूड को इन डेली टू डे एक्सरसाइज में लाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और यही एडवाइस है मैम. दैट्स इट. बिल्कुल शैली जी, जैसे आपने बताया ना कि मैं मेरी यही रह गया है, ग्रैटिट्यूड नहीं है और हर बात में कंप्लेन करना है. तो यही सीखना है कि अगर हर बात में हम लोग ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, तो जो चीजें कहते हैं ना कि वो अपने आप मैनिफेस्ट होंगी और हमें मिलेंगी. जब तक हम लोग श्योर मैम. कंप्लेनिंग नेचर को स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक ग्रेटफुलनेस आएगी नहीं. तब तक देयर हैज टू बी सम, कह सकते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए. और कहते हैं कि जो हमारे साथ कभी ऐसा कुछ सिचुएशनल बुरा हो जाता है, तो हम वी जस्ट कीप सेइंग टू द गॉड, ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा. सो इट शुड या नॉट हम बी द दूसरों केस. को पॉइंट करने लग जाते हैं कि आपकी आपने ये किया था, आपके सेट से मेरे साथ ये हुआ. सो इंस्टेड कि आप ये करो, आप अपने ऊपर वर्कआउट करो, तो वो ज्यादा आपको भी अच्छे रिजल्ट्स देगा. आप अपनी वीकनेसेस पे थोड़ा अच्छे से और काम कर सकती है ऐसे. बिल्कुल. सो और आप सेवन ली ऑफ लाइफ आर्टिकल से क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? मैम, सेवन ली ऑफ लाइफ इज अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल बुक इन itself. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू टू द 108 ऑथर्स, को ऑथर्स, जिनकी मतलब इट्स ऑब्वियसली उनके साथ ही हमारी जर्नी भी चली है. मैंने जो वहां से सेवन ली ऑफ से उठाया है इस बार, एक्सपेक्टेशंस.
कि आज के करंट टाइम में हम लोगों की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, हम अपने आप की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते, मगर हम दूसरों से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। पहले अपने अंदर झांक के देखो, फर्स्ट सी योर सेल्फ कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारा ऑरा कैसा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी क्लैरिटी क्या है लाइफ को लेके। क्योंकि आजकल क्लैरिटी किसी में नहीं है, जैसे होड़ है कि आईटी वाले सारे आईटी वाले पे जा रहे हैं। सो इट्स लाइक दैट, आप में अपनी क्लैरिटी नहीं है, जो होनी बहुत जरूरी है। अगर आप में क्लैरिटी आई, आप रियली रियल हो, नॉट फेक, यू आर रियल, और सेल्फ अवेयरनेस है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस की जो बातें आती हैं, जो हाई लेवल है हमारे, अपने आप ही काम डाउन पे हो जाएंगे। और हम एक अच्छा मतलब सूदिंग लाइफ और एक अच्छी कॉम्पिटिटिव लाइफ जी सकते हैं। तो क्या, ये जो मटेरियल चीजें ये हम लोगों ने ही बनाई हैं। बिल्कुल, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, और डू दे हर्ट? हाँ मैम, एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, मगर अपने आप से कि ओके फाइन, अगर मेरे फर्स्ट टर्म में 80% आए हैं तो मैं इतनी मेहनत करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मुझे 90 तक लाना है। ये नहीं कि मुझे ट्यूशन पे जा करके वो मैम का ऐसे, नहीं, आप अपने से सेट करिए अपने गोल्स और आगे खुद बढ़िए। इंस्टेड कि आप दूसरों पे भार डालो कि तुम्हारी वजह से ये हो गया था, उसकी वजह से ये हुआ था। इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड मूविंग ऑन, आप अपने माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स से क्या मैसेज देना चाहेंगे रीडर्स को और ऑडियंस को? श्योर मैम। वेल, ये जो आर्टिकल है इट्स रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगियों से ये थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन ले रहा है। एवरी मैरिज कांट बी अ परफेक्टली 100% गुड मैरिज, और कोई भी डिजास्टर मैरिज नहीं होती। इट्स द सिचुएशंस, तो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है मेच्योरली, इट्स अप टू अस ओनली। और जो ये स्टोरी है, इट्स जो मैंने लिखी है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। आई ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम्स ऑफ द पर्सनालिटी, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर। हमारे पास रोज ऐसे केसेस आते हैं जिनमें मैरिज हाफ ब्रोकन है ही है। वेल, अगर ऐसा है, हम लोगों को थोड़ा सेट डाउन करके चलना चाहिए कि दैट्स योर पार्ट, दैट्स माय पार्ट। और आप अपने आप को हील करते जाइए। जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रही थी, सर के साथ वर्कशॉप्स कर रहे थे हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैंने खुद हील किया है। इंस्टेड कि मैं दूसरों को बोलूं कि आप ये चीज हील करो, मैंने पहले अपने आप को हील किया। एंड थैंक्स टू अभिषेक सर एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि आप लोगों की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो बहुत मतलब फाइनली चलती हैं, और हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई, यू ऑल्सो नो दैट, कई आते नहीं है, कई आते हैं, जो आते हैं तो वो बहुत कुछ लेके जाते हैं, और जो नहीं आते, इट्स अप टू देम। बट ठीक है, कहीं ना कहीं नो वन इज कंप्लीट, नो वन इज परफेक्ट, बट एक रॉ को हमने कैसे एक अच्छे से अपने तरीके से प्रेजेंट करना, इट्स अप टू अस मैम। अगर एक चैप्टर लाइफ का खराब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पूरी लाइफ खराब है। वो एक चैप्टर खराब है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, पर हमारी पूरी लाइफ जर्नी, हमारी पूरी लाइफ स्टोरी जो है, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। वी शुड अप्रिशिएट आर एवरी डे कि वाओ, आज मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा, यस, या वाओ, आज मैंने ये करा। सो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट इंजॉय एवरी बिट। चाहे आप नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव में भी आप बहुत कुछ निकाल लोगे। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के हो, आप स्ट्रांग माइंडेड हो, आप नेगेटिव में भी बहुत कुछ पॉजिटिवली निकाल लोगे मैम। अगर तो नहीं दैट तो इज, फिर वो पॉजिटिव चीजें भी आप खो दोगे। सो इसका मतलब वही है कि अगर कर्ज भी है अगर कुछ लाइफ में, सो हाउ यू हैव टू टर्न इट आउट एज अ ब्लिस, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। एग्जैक्टली। यस। So, what's your say on spirituality? Does it really play an important role in one's life, Shelly ji? Yes, ma'am. Spirituality plays a most important role in every one life, because spirituality is not a luxury thing. Spirituality is not a material stuff. It's our inner self, our inner, कि हम अपने आप से कितना झूठ बोल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। आप मेडिटेशंस करके खुद को हील कर सकते हो। देर आर मेनी थिंग्स।
वेल जब भी हम कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं, हम रेमेडी परफॉर्म करते हैं, इट डजंट मीन दैट हम स्पिरिचुअल हैं। नो, हम अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि हम स्पिरिचुअल हो गए। स्पिरिचुअल होना कि स्पिरिचुअल इज नॉट लाइक परफेक्ट थिंग, वो हमें ही ठीक करेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि आपने ये पेन दिया है, आई डोंट नो क्या सोच के आपका ये ब्राउन कलर था, लेकिन आई टेक इट एज अ रेमेडी, जो आपने मेरे को ये पावर दी है, राइट? आपने ये पावर दी है इन अ वेरी सिंपल वे। ये ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट, विच मीन्स दैट जब भी मैं आपके साथ मिलूं या आपके साथ कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट करूं, आई हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड। आई हैव टू सराउंडेड माई सेल्फ इन अ वेरी सिंपल मैनर। और just like that, ma'am. Remedies are the part, but spirituality is something very different. Being into a cult practitioner like numerologist, tarot card reader, natal chart, this is not spirituality. These are the roots of spirituality. Spirituality is true meditation, आपका connection to the divine white light or to the divine you believe in. जो energies आप feel करते हो, the feeling is spirituality. कई बार कोई मेडिटेशन करते हुए रोते हैं, दैट्स द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए हैं और उनको डिस्कनेक्ट नहीं होना है। वो डिस्कनेक्शन में जब रोते हैं, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मटेरियल से और बाकी किसी भी चीजों से स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं। Definitely, पर very आजकल good point. आजकल स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आप यहाँ पे दान कर रहे हो, यहाँ पे ये कर रहे हो, मैंने रेमेडीज करी, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। नो, नो। Exactly, that is the inner connection with the God, and जो आपने बात explain की, that's actually the deep points one has to understand about spirituality. So सो is ट्रू। will ask another question, that when a girl gets married, her life gets totally turned. She becomes a woman, and then in her family, she has various roles, as she's a wife, mother, bahu, beti, bhabi, and much more. So, how would you define compromise and sacrifice, these both terms in her life? क्यों मैम? वेल जब भी कोई नई दुल्हन आती है घर में, उसके साथ इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि शी इज गोइंग टू बेंड, शी इज गोइंग टू एडजस्ट, शी इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, शी इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। हमारा क्या रोल होता है? नो, हम लोग सेटबैक हो जाते हैं कि अच्छा जी वो करेगी जो करेगी। अगर हम उस लड़की को देखें, वो अपना सब कुछ रून करके आपके घर आई है, अपना नेम रून करके आई है, अपनी पर्सनालिटी रून करके आई है, अपनी क्वालिफिकेशंस को रून किया है उसने। उसके भी करियर के बहुत सारे हाई पॉइंट्स होंगे। हमें उस चीज को थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग डेज में इस चीज को समझना चाहिए, टू मेक हो कंफर्टेबल फर्स्ट। क्योंकि बोला जाता है घर की लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी को लक्ष्मी की तरह ट्रीट भी करना चाहिए। लक्ष्मी कह के उसका निरादर करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। और क्योंकि वो जब वो एक बहू है तब तक तो वो एक सही है, जब वो एक माँ बन जाती है, शी हैज टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। उसको अपनी बॉडी के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि व्हेन यू आर इन अ प्रेगनेंसी जोन, या जो जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आप कितना गो थ्रू होते हो। बीइंग अ मदर, आपको मिनट मिनट में अपना खाना तक सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिकॉज आपका बच्चा रो रहा है। दैट्स द प्रायोरिटी। और व्हाट आई फील कि अगर ऐसी चीजें हैं तो प्लीज थोड़ी सी अगर आप भी उसकी हेल्प करोगे, तो उसके लिए वो खुशी खुशी सेक्रीफाइस करेगी हर चीज। और कॉम्प्रोमाइज का जहां तक आता है, कॉम्प्रोमाइज वाइसा वर्सा है। अगर आपने मेरी 10 बातें मानी है तो मैं भी आपकी 15 बातें मानूंगी। एग्जैक्टली, जी मैम। कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है उसे, बिकॉज शी हैज अ वेरियस रोल्स टू प्ले। सो जैसे कि आपने बताया, जैसे कि आपने बच्चे का एग्जांपल दिया, तो उसी तरीके से शी हैज टू कॉम्प्रोमाइज, सबकी बातें सुन के समझ के। इसी तरीके से चलता है सारा कुछ, एक तो हैप्पी फैमिली कह सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ कह सकते हैं, उसी तरीके से चलती है। सो मैम, आपकी तो क्या फीलिंग रही, जैसे अभी आपने पेन के बारे में तो शेयर किया, जब आपको बुक्स और सारा जो पर्सनलाइज गिफ्ट्स मिली, तब क्या फीलिंग थी व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू हैव बिकम नाउ एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर? मैम, इट वाज अ रियली ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, बिकॉज when I was not a practitioner, I was just a simple housewife. I didn't lead anything कि okay fine मैंने कुछ appreciate किया हो या कुछ
अपने से कराओ। इट वाज फर्स्ट टाइम कि मेरा मतलब मुझे कुछ ऐसे लेबल ही मिला। एंड व्हेन आई होल्ड द पेन, मतलब यू हैव प्रिंटेड द नेम्स, इट वाज लाइक ये मेरा है, एंड नो वन हैज द राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम मी। एंड तभी मैंने सेकंड में इनरोलमेंट जल्दी कराई कि नहीं अब मुझे और चाहिए, लाइक आपने मेरी भूख बढ़ा दी। तो holding my own babies with my co-authors, it was an amazing feeling मैम, ये amazing feeling। और जब हम लोगों को पता चला कि इसने अवार्ड जीता है, तो वो जो यहाँ का लेवल था ना मैम, वो यहाँ पे पहुंच गया कि नहीं एटलीस्ट हम कुछ तो और कर सकते हैं अच्छा। और और अच्छा लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, कोई इतना मतलब हाई फाई वर्ड्स ना दे करके एक सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ताकि जो पढ़ने वाला है वो भी इजीली समझे, उसको गूगल ना खोलना पड़े, यू नो। नहीं तो आजकल के इतने मिट्टी मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड्स है जो समझ ही नहीं आते कई बार, तो यू हैव टू टाइप ऑन गूगल की ओके फाइन इसका क्या मतलब है, और फिर बोलते लो जी इसका ये मतलब था, अच्छा ठीक है। तो हम लोग ने जैसे कि आप लोगों ने हम लोगों को ट्रेन किया हुआ था, हम लोगों ने वैसे काम करके हमें बहुत अच्छा लगा मैम। ग्रेट ग्रेट मैम, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। एंड आप फ्यूचर ऑथर्स को, न्यू कमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ अंकाक्षर मिराकल्स की वो भी जुड़े, और किस तरीके से वो लोग अपने वर्ड्स और थॉट्स सोसाइटी के साथ शेयर कर सकते हैं? वेल मैम, सबसे पहले जो भी आना चाहता है प्लीज जॉइन अस। आपको जो बोला जाएगा वही मिलेगा, मतलब जो सर अगर बोलेंगे, सर या मैम जो भी बोलेंगे कि हम ये देंगे, तो इसका मतलब हम देंगे, सूनर और लेटर पर हम देंगे जरूर। और ब्रांड एम्बेसडर बना दो मैम मुझे। आप लोग हमारे साथ जुड़ गए तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, बिकॉज हम रहे या ना रहे पर ये किताबें जरूर रहेंगी, तो सो ऑलरेडी ट्रू मैम, हमने इन्हें लिख के सो सोसाइटी ट्रू। के लिए बहुत कुछ कर दिया है। सो यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर सोसाइटी के लिए। जो भी शैली जी के थॉट्स पढ़ेगा तो डेफिनेटली ही और शी, शैली जी के क्या, बाकी के भी जो लोग जुड़े हैं इस किताब में, थॉट्स पढ़ेगा तो डेफिनेटली, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने खुद जब रीड किया है तो मैंने कुछ ना कुछ सीखा है सबसे, सारे 108 आर्टिकल से। सेवनली में भी 2000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो इतना कुछ, हर किसी की लर्निंग, अर्निंग, एक्सपेक्टेशन, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। सो देर इज अ लॉट मोर टू लर्न अबाउट द फ्रॉम बोथ दीज बुक्स। सो यस थैंक मैम, यू सो बट आई मच। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द न्यू कमर्स जो इस लाइन में आना चाहते हैं, प्लीज सच बोलिए, सिंपल बोलिए, बेसिक बोलिए, क्योंकि जितना आप सिंपली लिखोगे उतना ही वो ब्यूटीफुली क्रिएट होगा, और उतना ही उस चीज को लाइक पहचान मिलेगी मैम। और जितना आप ओवरली जाओगे या कुछ भी आप अपर वर्ड से ऐड ऑन करोगे, वो आपका क्राफ्ट उतना ही नीचे जाता जाएगा। आप इतना अच्छा लिखे कि एक जाना क्या 10 जाने पढ़ के उससे मोटिवेट हो कि नहीं यार हमें भी कुछ ऐसा कर लेना चाहिए, हमें कुछ वैसा करना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस एज वेल। टाइम टाइम पे आप भी आकर के पूरी मोटिवेशन दी है, पूरी सपोर्ट दी है आपने और आपकी टीम ने मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। जल्दी मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। दिस वॉज रेणु मंगतानी विद शैली अरोड़ा। थैंक यू सो मच मैम, हर टेक हर केयर। महादेव। हर हर महादेव।